Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome to the part 2 of factors affecting X-ray beam. So this topic I started in the previous video. So please go and watch part 1 before continuing with this video for better understanding. So पहली वीडियो में हमने 3 factors discuss करे थे. The first one was exposure time, the second was tube current and the third was tube voltage. Now the fourth factor which we are going to discuss here is the filtration. फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, जो लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स हैं, जो लो एनर्जी एक्सरेज हैं, उसको हम रिमूव कर देंगे. बिकॉज एज डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स हार्मफुल होते हैं, ओके, एंड दे आर नॉट डिजायरेबल. So we are removing the low energy X-ray photons and this process is known as filtration. And last video में I told you that energy is inversely proportional to the wavelength. तो अगर low energy X-ray photons हैं, मतलब energy कम है, तो उनकी wavelength ज़्यादा है. या हम बोल सकते हैं कि filtration is a process by which we are removing low energy X-ray photons or high wavelength X-rays. Okay, so this is the process of filtration. Now filtration के 3 types होते हैं. There are 3 types of filtration. The first is the inherent filtration, the second is the added filtration and the third is the total filtration. Okay, inherent, added and total filtration. Beginning with the first one which is inherent. See, inherent का ही मतलब खुद क्या होता है? inherent का मतलब होता है within, किसी चीज के अंदर कुछ already होना, inherent, right? So what happens? Inherent filtration, how do we do this process? It is brought up by the oil. होता क्या है, जो आपने एक्सरे का ट्यूब पढ़ा था, उस एक्सरे के ट्यूब के अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है. So this oil does the work of filtration. Okay, so it has a range. It is about 0.5 to 2 mm of aluminium thickness. You just remember this range. Okay, so the inherent filtration, it is about 0.5 to 2 mm of aluminium thickness, right? ये range क्या है? You need not know into that much detail. Just remember this is in regard to the half value layer. This is in regard to half value layer जो हम आगे अभी पढ़ेंगे. So this is in regard to half value layer, right? So this is inherent. Now what is the added filtration? Added मतलब ही समझ आ रहा है आपको that you are actually adding some filters. Okay, you are adding some filters which are made up of aluminium. इन filters को आप एक्सरे की ट्यूब के बीच में एंड पेशेंट के बीच में प्लेस करते हो. यू प्लेस सम फिल्टर, यू एड सम फिल्टर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम बिटवीन द एक्सरे ट्यूब एंड द पेशेंट. व्हाई आर यू डूइंग इट? व्हाई आर यू डूइंग इट? टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ताकि पेशेंट तक पहुंचने से पहले जो भी आपके लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स हैं विच आर एक्चुअली हार्मफुल टू पेशेंट, वो रिमूव हो जाए. Okay, so you are adding a filter of aluminium ताकि लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स रिमूव हो जाए एंड हार्मफुलनेस उन लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स का कम हो जाए. Okay, so it is made up of aluminium but it can also be made up of copper, but still ज़्यादा commonly aluminium के filters use होते हैं, right? Now moving ahead with the third type of the filtration which is the total filtration. टोटल नाम से ही समझ आ रहे हैं. वी आर गोइंग टू सम अप द अबव टू, दैट इज दिस इज इनहेरेंट फिल्ट्रेशन प्लस एडेड फिल्ट्रेशन. दिस इज योर टोटल फिल्ट्रेशन. ओके, एंड यू जस्ट रिमेंबर 1 पॉइंट फॉर योर MCQs कि 70 kVp के ऊपर, 70 kVp के ऊपर टोटल फिल्ट्रेशन जो है इट इज 1.5 to 2 mm of the aluminium thickness. Okay, so you remember this for MCQ purpose.
70 kVp के ऊपर जो टोटल फिल्ट्रेशन होता है दैट इज 1.5 to 2 mm ऑफ एल्यूमिनियम थिकनेस. सो गाइज मैंने थोड़ी देर पहले एक टर्म यूज किया दैट वाज HVL. इस टर्म का मतलब है हाफ वैल्यू लेयर. जस्ट गिविंग यू लिटिल बिट ब्रीफ कि ये हाफ वैल्यू लेयर क्या होता है. सी HVL का मतलब क्या है? फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट इट एंड देन एक्सप्लेन यू. दिस HVL इज डिफाइंड एज द थिकनेस ऑफ अ सब्सटेंस. सब्सटेंस में लाइक एल्यूमिनियम that is required to allow only half of the X-rays to pass through it. Okay, so HVL क्या होता है? एक सब्सटेंस का जैसे कि एल्यूमिनियम का थिकनेस, उतना थिकनेस कि वो सिर्फ हाफ ऑफ द एक्सरेज को अपने में से पास होने दे एंड दैट आर ऑफ हाई एनर्जी राइट. एक सब्सटेंस का फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का वो थिकनेस विच इज अलाउइंग ओनली हाफ ऑफ द एक्सरेज टू पास थ्रू इट विच आर ऑफ हाई एनर्जी राइट. सो दिस थिकनेस, उस मटेरियल की उस थिकनेस को आप HVL बोलते हो, दैट इज हाफ वैल्यू लेयर. रिमेंबर थिकनेस ऑफ द एल्यूमिनियम शुड बी सच दैट ओनली हाफ ऑफ द रेज दैट इज हाई एनर्जी रेज जो है वो उससे पास हो. सो द फिफ्थ फैक्टर दैट कंट्रोल्स द एक्सरे बीम इज कॉलिमेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या तो ये अलग से भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है. सी कॉलिमेशन का मतलब क्या है उसको समझने के लिए हम जाते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर पे जहां मैंने आपको समझाया था कि एनोड से जब आपके एक्सरे निकलते हैं तो व्हाट हैपेंस, एनोड पे जब आपके एक्सरे निकलते हैं दे आर स्कैटर्ड एंड रिमेंबर कोई बिखरी हुई चीज होगी, कोई स्कैटर्ड बीम्स होंगी, दे आर गोइंग टू कॉज मोर हार्म टू द पेशेंट. सो दे विल कॉज unnecessary harm to the patient. Okay, स्कैटर्ड एक्सरे रेडिएशंस पेशेंट को हार्म पहुंचाती हैं. सो इन स्कैटर्ड रेडिएशन को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक तरीका है दैट इज कॉलिमेशन. व्हाट डू वी डू बेसिकली? वी प्लेस अ मेटालिक बैरियर. ओके, वी हैव अ मेटालिक बैरियर दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलीमेटर. Okay, and in the middle there is an aperture. In this collimator there is an aperture in the middle. What happens जब आपकी एक्सरे बीम अब निकलेगी, whenever अब आपकी एक्सरे बीम अब निकलेगी, इस कॉलिमेटर के थ्रू निकलने के बाद we will see scattered radiation जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी. We will not get scattered radiation. Okay, जो आपका एक्सरे बीम है उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा because you have placed this collimator. तो scattered radiations reduce हो जाएंगी. So you can say that collimator is basically a metallic barrier with an aperture in the center, in the middle, that is used to reduce the size of the X-ray beam. Okay, these collimators are basically reducing the size of X-ray beam. Why? It is done to prevent the scattering radiations. ठीक है, इससे radiation protection achieve होता है. बिकॉज स्कैटर्ड रेडिएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पेशेंट को हार्म होगा राइट, दैट इज मोर हार्मफुल. तो अगर हम ये कॉलिमेटर्स यूज कर रहे हैं तो स्कैटर्ड रेडिएशन कम होगी और रेडिएशन प्रोटेक्शन अचीव होगा, पेशेंट ज़्यादा सेफ होगा, हार्म पेशेंट को कम होगा बिकॉज ऑफ द एक्सरेज राइट. सो दिस वॉज अबाउट कॉलिमेशन. Remember that this collimator which I have discussed, this collimator is placed between the X-ray source, X-ray जहां से निकलता है उसके बीच में और पेशेंट के बीच में प्लेस किया जाता है. Now remember that collimators are made up of lead. Collimators जो हैं वो lead के बने होते हैं and there are different type of collimators. Diaphragm type हो सकता है,
ट्यूब्यूलर टाइप हो सकता है, जस्ट रिमेंबर द नेम्स, राउंड होते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। आउट ऑफ द ऑल राउंड और रेक्टेंगुलर मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, एंड इनमें भी रेक्टेंगुलर वाले जो हैं दे आर मेनली प्रेफर्ड, राइट। रेक्टेंगुलर वाले 60% मोर एफिशिएंट होते हैं इन रिड्यूसिंग द पेशेंट एक्सपोजर, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड रिमेंबर वन थिंग, व्हाट आर स्लिट कॉलिमेटर्स। सी स्लिट कॉलिमेटर्स जो होते हैं ये आपके ओपीजीज में यूज होते हैं। ओपीजी हम आगे पढ़ेंगे। सो स्लिट कॉलिमेटर्स दे आर यूज्ड इन ओपीजी। एक चीज जो हमको समझ आई, कॉलिमेटर्स स्कैटर्ड रेडिएशन को कम करते हैं, एक्सरे बीम का साइज रिड्यूस करते हैं, एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन अचीव करने में हमको हेल्प करते हैं। ऑल्सो यू शुड रिमेंबर collimators, because you are placing something between X-ray source and patient, no? So this is going to decrease the density of the film. Remember, this is ultimately going to decrease the density of the film, right? जितना ज़्यादा collimation होगा उतना कम आपके फिल्म का डेंसिटी होगा। तो एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। So this was about collimation. So guys, I am ending the video over here. आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सरे बीम, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो। फर्स्टली वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सपोजर टाइम, सेकेंड अबाउट ट्यूब करंट, थर्ड अबाउट ट्यूब वोल्टेज, the fourth here we discussed filtration, the fifth we discussed about collimation. So they are the factors which affect the X-ray beam. I request you please visit to the last video and see that before you continue with this one for your better understanding. And if you have any queries, any doubts, please feel free to ask me below in the comment section. I hope you liked the video. If you liked the video, please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. We will be meeting super soon in the next video with a fresh topic. Thank you.